Hello guys, in this video we will see the four new labor codes and try to remember all the important points which is important for our upcoming UPSC examination 2024. In this video I have covered all the major points, so you do not need आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैंने सारे पॉइंट्स जो लेबर कोड में इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पज से मैंने सबको एक जगह कंक्लूड किया है और कलेक्टिवली इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। सो वी कैन स्टडी फ्रॉम यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। सो बिफोर गोइंग इनटू दिस पीडीएफ, फर्स्ट लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दीज न्यू लेबर कोड्स, नए लेबर कोड्स की जरूरत क्यों थी। तो सबसे पहले फर्स्ट यू नो दैट there were almost 29 labor laws, 29 नए laws थे जो कि it was hard to compliance, it was a burden for the administration, with प्रशासन के लिए बहुत हैक्टिक था कि उनको इम्प्लीमेंट करें। ओके, तो उसको सिंप्लीफाई और मॉडर्नाइज करने के लिए न्यू लॉज को लाया गया। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज ऑफ डूइंग बिजनेस को ऑल्सो our government is continuously pursuing to perform better in ease of doing business, so उसके लिए भी ये लाया गया। सेकेंड ब्रॉड कवरेज, earlier the only few workers were considered or covered under the different laws, but in this a broad perspective has been taken. Next, the evolution, second, historical evolution. So is the another factor because many constitutional, non-constitutional bodies have recommended new things to add or require new laws. Now, first, before going into the four new laws, just see what are the four new laws has submerged the previous one. In the Code of Wages 2029 uh, submerged it a few laws like four laws: the Payment of Wages Act, Minimum Wages Act, uh, and others Minimum Payment of Wages Act, Payment of Wages, Equal Remuneration Act, and the objective to ensure. Second, industrial relation. In industrial relation, there are many laws have been merged. The condition of employment, internal disputes, magisterial union, and many more. In social security, there were nine laws. There were almost nine laws which has been merged, and EPFO in that acts like ESI Act, Gratuity Act, Maternity Act, this all has been submerged in this single act. The fourth, the occupational safety, health and working condition, इसमें हम उनके नॉर्मल सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर, वो हेल्थ के बारे में बात करते हैं। In this video, we also discuss about this topic also कि what are the changes, क्या क्या बदलाव किए गए हैं द ओल्ड और न्यू में, और उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर पार्ट भी डिफ्रेंशिएट करके दिया हुआ है इसमें और मेरे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में। ओके, द कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2009, इसमें हम कवर क्या करते हैं। फर्स्ट लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड वेजेस से आप कैन अंडरस्टैंड कि हम इसमें जितने भी वेजेस जो कि दिए जाते हैं, वेजेस इंक्लूड होते हैं द मिनिमम वेजेस, द बोनस, बट इसमें जो अलाउंसेस दिए जाते हैं लाइक हाउस रेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं, ये इंक्लूड नहीं होते। डियरनेस अलाउंस ये इंक्लूड होते हैं।
सो अभी हम फाइंड आउट फिगर आउट करेंगे कि क्या क्या एडेड है और क्या क्या नहीं एडेड है. ओके, नाउ लेट्स कंपेयर कि ओल्ड लॉज में क्या क्या गिवन था एंड व्हाट आर द थिंग्स गिवन इन न्यू लॉज. तो ओल्ड लॉ में यू कुड सी दैट इन मिनिमम वेजेस दैट फिक्स मिनिमम वेजेस दिया हुआ था, but it was applied only to scheduled industries. Okay, payment of wages act, ये टाइमली वेज पेमेंट के लिए बोला गया था, बट इट वाज अप्लाइड only to the worker which were earning below 24,000. So this act was implemented in the payment of bonus act, uh, जो कि एनुअल बोनस को कवर करता था, एंड दिस वाज फॉर दोज हु were earning less than 21,000. And the fourth, the Equal Remuneration Act, uh, no gender discrimination was also there in old laws, but it was limited to industry enforcement, not the every establishment. Now, the what are the changes has been made by the government in the new codes. So earlier, uh, it was limited to establish a specific establishment, but in this code, applicable to all the employees, to all the employees, whether it is private, government, organized, unorganized. It is applicable to all the types of schedule, not uh, just a schedule employment, but for everyone. Also, earlier there was a wage ceiling कि इतने इतना लिमिटेड अगर होगा तो ही ये कवर मिलेगा, कवरेज मिलेंगे. बट दिस टाइम इन द न्यू लॉज देयर इज नो न्यू कवरेज, एवरीवन इज कवर्ड. इवन कोई अगर 50,000 कमा रहा है, he is also covered under the code on wages act, और कोई 20,000 भी कमा रहा है, he is also under this. So some of the definition of wages for all purposes like uniform, minimum wages, bonus, overtime, these all are included. Also for a bonus, the subject कि अगर किसी का वेज 21,000 से का के अराउंड है या उससे नीचे है, तभी उस पर ये एप्लीकेबल है. ओके, अब इस कोड के अंदर क्या 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 है, अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं. पहले एक एग्जांपल की तरह समझते हैं कि अर्लियर द प्राइवेट ट्यूशन टीचर विद 6 एम्प्लॉयज को मिनिमम पे वेजेस देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वे शेड्यूल लिस्ट में नहीं आए थे. बट नाउ इन द न्यू कोड द ट्यूशन सेंटर मस्ट पे द मिनिमम वेजेस, फॉलो द वेजेस मेंटेन, जो कि पहले एक्सेप्शन था, नाउ इट इज कंपल्सरी फॉर देम टू पे, कोई एक्सेप्शन नहीं. सो एक्ट क्या क्या सब्स्यूम्ड हुआ है इसमें हम चेक करते हैं. सो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, payment of bonus act and equal remuneration act, these four were subsumed and in the new code. Okay, so यहाँ हम वेज की डेफिनेशन को एक बार समझते हैं. वेज की डेफिनेशन में आपके जितने भी रेमुनरेशन लाइक सैलरी, अलाउंसेस, जो कि मॉनेटरी टर्म पैसों में आ, हम बता सकते हैं, जिसमें आपका बेसिक पे, बियरनेस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस, ये होता क्या है ये अब डिस्कस करते हैं अभी. तो ये सारी चीज़ इंक्लूड होके जितना रेमुनरेशन मॉनेटरी टर्म में होता है उसको वेजेस कहते हैं. पॉइंट टू रिमेंबर कि हाउ ट्रेड अलाउंस, बोनस, पेंशन कंट्रीब्यूशन, ओवर टाइम, ग्रेचुटी, ये सारे वेजेस के डेफिनेशन के बाहर है. तो remember that it is also important for the examination कि which are the things are outside the definition of wages.
तो rent allowances, bonus, pension, overtime, gratuity, these are out of the monetary terms. Okay, let's discuss the dearness allowances. So dearness allowances like आपकी सैलरी अगर 100, 1000 है, 10,000 है, 1 lakh है, और इन्फ्लेशन 7% है around it. So to tackle the inflation impact on your salary, सरकार या आपके जो एम्प्लॉयर हैं दे गिव यू द डीएनएस अलाउंस. सो डीएनएस अलाउंस दिया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को तो ऑफसेट किया जाए जो इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन का. ओके, रिटेनिंग अलाउंस क्या है? रिटेनिंग अलाउंस उसको है उसको कहते हैं जैसे कि लेट्स सपोज कि आप किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहे थे और फॉर एनी पर्पस वो कंपनी किसी 5 दिन 10 दिन या किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बंद हो गई. कंपनी ने फिर भी आपको पे किया फॉर रिटेनिंग सर्विस, एंड जैसे ही कंपनी वापस ओपन हो आप वापस से ज्वाइन करोगे. तो जो पर्टिकुलर पीरियड के लिए दिया गया दैट इज ए रिटेनिंग पीरियड. ओके, यहाँ एग्जांपल है जैसे शुगर मिल है वो 8 मंथ के लिए ईयर में वर्क होता है, and the remaining 4 month there is no work. So in that जो ऑनर है वो 5 मंथ एक रिटर्निंग अलाउंस प्रोवाइड करते हैं रेगुलर वर्कर को. ओके, now the 50% rule. This question was being asked in many times in many previous examination. So try to understand कि अगर कोई भी wages अगर लाइक एक रेम्यूनरेशन है अगर वो 50% से ज़्यादा है वेजेस के, वेजेस आपको पता है कि ऑल द रेम्यूनरेशन टोटल रेम्यूनरेशन का अगर 50% ज़्यादा है देन वो एम्प्लॉय का टोटल पे में ऐड हो जाएगा एंड दैट इज काउंटेड एज इट्स वेजेस. ये इसीलिए किया गया है ताकि जो जो एम्प्लॉयर है वो सोशल सिक्योरिटी को पे पैसे कम खर्च के जो इन्फ्लेटिंग अलाउंसेस है वो उसको ज़्यादा देते. सो इसको प्रिवेंट करने के लिए दिस लॉ हैज एक बार फिर से समझिए कि 50% जो वेजेस है 50% आपका जो टोटल रेम्यूनरेशन है वो एक कैप्ड है कि इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते वेजेस को. ओके, लाइक जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने आपकी जॉब जो है वो 1 लाख की और आपने अपने स्टाफ को जो हाउसिंग अलाउंसेज है वो 80,000 की दे दी ना. आपकी जो टोटल सैलरी है वो 1 लाख की है, आपने अलाउंसेस कितने की दे दी 80,000, 50% 50 लाख, तो 30 लाख आपने ज़्यादा दिया. तो ये जो 30 लाख है सॉरी 30,000 जो है ये आपके जो सैलरी है उसमें ऐड हो जाए, जिससे 1 लाख आपकी सैलरी है और 70,000 का एचआर मिला ना. ये 50% से ज़्यादा है क्योंकि 50 लाख 50% के ज़्यादा है. तो कितना ज़्यादा है? 20 लाख. तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? आपकी सैलरी कैलकुलेट की जाएगी 1,20,000. ना अदर की डेफिनेशन देखते हैं ना. एम्प्लॉय एम्प्लॉय किसे कहते हैं? सो एम्प्लॉय एनीवन जो मैनेजरियल रोल में है या जो who has the authority to pay to employ a person, उसको हम लोग एम्प्लॉय करते हैं. और वर्कर whoever working as no manual skilled worker but below a certain cutoff they are called worker. अब हम इसको डीपली देखेंगे कि किसको हम लोग वर्कर कहते हैं और किसको मैनेजरियल कहते हैं. ओके, सो वर्कर मीन्स एनी पर्सन जो कि
एम्प्लॉयड है किसी भी मैनुअल वर्क के लिए, अनस्किल्ड वर्क के लिए, स्किल्ड वर्क के लिए, टेक्निकल वर्क के लिए, ऑपरेशनल, क्लर्कियल, सुपरवाइजर वर्क के लिए। ऑल्सो रिमेंबर कि अगर सुपरवाइजर वर्क में वो 18,000 से ज़्यादा की सैलरी ड्रॉ कर रहा है तो वो सुपरवाइजर नहीं, वो ऐसा एम्प्लॉय मैनेजर की तरह या एम्प्लॉयर की तरह देखा जाएगा। बट और जो वर्क कोई भी जो मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल वर्क है, इवन is earning more than 18,000, he is considered as a worker. Okay, so manual worker अगर मैनुअल वर्कर अगर 40,000 कमा रहे तो वो वर्कर है, और सुपरवाइजर अगर 40,000 कमा रहा है सो ही इज नॉट वर्कर। ओके, नाउ कोड ऑन वेजेस 2019 है, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो हमें बिल्कुल याद करने एग्जामिनेशन पर्पज से। नाउ कोड गारंटी करता है मिनिमम वेजेस के लिए फॉर ऑल द एम्प्लॉयज इन द इंडस्ट्री। पहले ये लिमिटेड था शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए, बट नाउ इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द इंडस्ट्रीज एंड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट इंडस्ट्रीज है, वो स्टेट गवर्नमेंट एट द सेंट्रल, अगर नेशनल इंडस्ट्रीज है तो वो नेशनल लेवल पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस बनाएंगी फॉर ऑल द सेक्टर। ऑल्सो इन दिस वेज a new concept, the national floor wage is introduced. नेशनल फ्लोर वेज ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी फॉर द बिजनेस क्रॉस द रीजन, और कोई भी स्टेट कैनॉट सेट देयर मिनिमम वेजेस लोअर देन दिस फ्लोर। एक फ्लोर है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर 10,000 फिक्स कर दिया कि 20,000 जो है वो फिक्स है और एज अ नेशनल फ्लोर वेज, तो कोई भी स्टेट उससे नीचे का फ्लोर वेजेस, मिनिमम वेजेस सेट नहीं कर सकता। हाउएवर वो स्टेट कैन वेरी द सीलिंग, द हायर लिमिट दे कैन वेरी कि इतना मिनिमम होना चाहिए या इससे ज़्यादा हो सकता है, बट द मिनिमम फ्लोर वेजेस इज लिमिटेड। ऑल्सो टाइमली और फुल पेमेंट कब दिया जाना चाहिए, पेमेंट कैसे देना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस्ड है कि अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयड है डेली वर्कर की तरह, तो एट द एंड ऑफ द शिफ्ट, जैसे ही कोई दिन खत्म होता है उसी समय उसका जो पेमेंट है वेज उसको दे देना है। अगर कोई वो पर्सन वीकली काम करता है सो आफ्टर द एंड ऑफ वीक 2 दिनों के भीतर, विद इन 2 डेज उसको रेमुनेशन देना है। अगर कोई फोर्थ नाइटली 15 दिन के लिए काम करता है तो आफ्टर द 15 डे, 2 दिन के विद इन 2 डे आपको पेमेंट करनी। एंड अगर किसी स्टैब्लिशमेंट में 1,000 वर्कर्स से कम है तो बिफोर 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, लाइक मैंने इस मंथ काम किया और मेरी कंपनी में 1,000 वर्कर्स से कम है, तो नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख से पहले मुझे पेमेंट मिल जानी चाहिए। अगर मेरी अगर मेरे इस्टेब्लिशमेंट में 1,000 से ज़्यादा वर्कर है सो देन आपको बिफोर 10th आपको नेक्स्ट मंथ से पहले पे कर देना है। ऑल्सो दिस इज अ रिपीटेड लॉ कि कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वली पे किया जाएगा फॉर इक्वल वर्क वेदर इट इज मैन और वुमेन। ओके, नो डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड। पेमेंट ऑन बोनस, ना बोनस उनके लिए है दोज हु आर अर्निंग 21,000 पर मंथ या उससे लिमिटेड। ये मैंडेटरी है इस सेंस में कि दोज हु आर वर्किंग 21,000 एंड एस्टेब्लिशमेंट 20 वर्कर से ज़्यादा है तो मिनिमम बोनस उसको 8.3% उसको देना ही है, ये मैंडेटरी है। ओके,
और ये जो मिनिमम वेजेस है ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करती है। ओवर टाइम पेमेंट एज आई सेड इट वाज आल्सो इन प्रीवियस कि अगर कोई कंपनी ओवर टाइम कराती तो उसको नॉर्मल वेजेस से दुगना पे एटलीस्ट 2 times द नॉर्मल रेट। तो नाउ द सेकंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, हम यहाँ इंडस्ट्रियल रिलेशन को जानेंगे कि कैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कनेक्टेड है इंडस्ट्री में और क्या क्या चीज़ें जो फैक्टर है जैसे यूनियन हो गई, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगी, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ओके, नाउ डेफिनेशन की बात करें तो वर्कर की डेफिनेशन इज द सेम कि कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी वर्कर जो स्किल्ड वर्क, अनस्किल्ड वर्क, मैनुअल, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लर्क के वर्क कर रहा है और जिसकी सैलरी 18,000 से कम है, दे आर कॉल्ड एज वर्कर। एंड जिसकी सैलरी 18,000 से प्लस है सुपरवाइजर में, देन इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयर। इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है इसको जानते हैं ना। इंडस्ट्री कोई भी ऐसी सिस्टमैटिक एक्टिविटी जो गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करती है, एक्सक्लूड द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और डोमेस्टिक वर्क, उसको हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। ऑल्सो द ट्रेड यूनियन, ये इस कोड में ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज किया गया है और एक नया कॉन्सेप्ट नेगोशिएटिंग यूनियन एंड काउंसिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये क्या है समझने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में 50% से ज़्यादा, लाइक एक इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे ट्रेड यूनियन है और किसी एक ट्रेड यूनियन के पास 50% से ज़्यादा वर्क मेंबर है, वर्कर जो है वो एज अ मेंबर है, तो दैट यूनियन इज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल यूनियन। ओके, ऑल द यूनियन। बट अगर किसी भी यूनियन के पास, जितने भी यूनियन है विद इन इंडस्ट्री, किसी के पास 51% नहीं है, तो देन एक नेगोशिएटिंग काउंसिल फॉर्म होगी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिसीजन लिए जाएंगे। ओके, नाउ थ्रेशोल्ड कितना चाहिए किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को, और कि स्टैंडर्ड ऑर्डर जो सर्विस रूल्स क्या है, कैसे रूल्स होने चाहिए, एम्प्लॉयर को कैसे आना चाहिए, क्या क्या चीज़ें मिलेगी, ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए एक एस्टेब्लिशमेंट सर्विस रूल जो है वो कम से कम 300 वर्कर से ज़्यादा होना चाहिए। अर्लियर ये 100 था, बट इसको अब बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। सो इन अगर वो 300 से 1 और जो 100 से 300 है, अब उनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो सर्विस रूल को अपने हिसाब से बदल सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। बट द 300 वर्कर आपको एक लीगल स्टैंडिंग ऑर्डर बना कर रखना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट की सर्विस रूल को डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, क्या क्या की प्रोविजन है इसको हम लोग जल्दी जल्दी से जानते हैं। नाउ आई इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इसने फर्स्ट टाइम फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को लीगलाइज कर दिया है। नाउ एम्प्लॉयर कैन हायर वर्क ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी, लाइक पहले दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, बट नाउ जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है दे आल्सो गेट द सेम बेनिफिट्स जो कि एक परमानेंट एम्प्लॉयज को मिलते हैं टिल द टाइम ही इज वर्किंग इन दैट एस्टेब्लिशमेंट। जब तक उस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं तब तक उसे सेम बेनिफिट मिलेंगे जो एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं। ओके, ना प्लस जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं और जो वर्कर हैं दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी। याद रखिएगा, दिस प्रोविजन वॉज नॉट गिवन इन द ओल्डर लॉ, द ग्रेचुटी वन, कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनके लिए ग्रेचुटी नहीं थी, it was only for the regular employee, but in this law gratuity was given to all the
person, whether he is a contract or he is on the contract job or a permanent job. Okay, now अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट 300 वर्कर है उसमें और वो ले ऑफ करती है, तो उस 300 वर्कर से कम है वो ले ऑफ करती है, तो वो विदाउट गवर्नमेंट के अप्रूवल से वो कर सकती है। हालांकि ये पहले 100 वर्कर के लिए था, बट नाउ इट हैज बीन रेज्ड टू 300। अगर कोई इंडस्ट्री 300 से ज़्यादा है तो अगर उन्हें ले ऑफ करना है तो दे नीड अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए डुअल मेंबर का इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स में हियरिंग होता है, जिसमें अगर एक मेंबर अगर एब्सेंट है तो सेकंड मेंबर्स कैन प्रोसीड अहेड। अगर कोई भी अवार्ड दिया जाता है तो वो उसको 30 दिनों के अंदर, 30 डेज के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना है। एंड बिकॉज द जस्टिस इज, इफ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ओके, स्ट्राइक और लॉकआउट को थोड़ा सा इस रूल में बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया गया है। लाइक आपको बिफोर लॉकआउट आपको 40 डेज का एक प्रायर नोटिस देना पड़ेगा मैनेजमेंट को फॉर एनी स्ट्राइक और लॉकआउट। और ये जो नोटिस है ये वैलिड है फॉर 60 डेज। अगर 60 डेज के अंदर कोई भी स्ट्राइक और लॉकआउट होता है तो इट इज वैलिड। अगर उसके बाद होता है सो देन अगेन आपको एक जो प्रायर नोटिस है 14 दिन का फिर से देना पड़ेगा, एंड देन 60 डे का अगेन, तो ये कैरी ऑन होगा। ओके, नाउ ऑल्सो एक चीज इंक्लूडेड है कि अगर 50% से ज़्यादा वर्कर मास कैजुअल लीव लेते हैं ऑन द गिवन वीक, तो उसको भी स्ट्राइक ही टर्म किया जाएगा। 50% लाइक 100% है, अगर एक ही दिन में 50% लोगों ने 14 दिन के प्रायर नोटिस के बाद 50% लोगों ने मास लीव कर लिया, सो दैट डे इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्राइक। नाउ ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन, ये फर्स्ट टाइम इस लॉ के अंतर्गत हुआ है और it is officially acknowledged as a representative of worker. Second, रीस्किलिंग फंड। रीस्किलिंग फंड है क्या? तो जो भी वर्कर जो रिट्रेंच वर्कर है जिसको ले ऑफ हो गए हैं, वो जॉब से निकाला जा चुका है, उनके लिए एम्प्लॉयर 15 दिन का वेजेस जो है वो एक फंड में डालेंगे जिसको रीस्किलिंग फंड करेंगे। रीस्किलिंग फंड किसके लिए है? फॉर स्किल अपग्रेडेशन। सो ये जो 15 डे वेजेस है वो विद इन 15 दिन, सॉरी 45 दिन के रिस्ट्रेंटमेंट के अंदर आपको देना है। ओके, ऑल्सो इन दिस प्रोविजन वुमेन इन नाइट शिफ्ट ऑल्सो अलाउड, अर्लियर इट वाज नॉट अलाउड कि वुमेन नाउ वो रात को भी काम कर सकती है, वर्कर इन नाइट। नाउ there are key points which we have to remember. फर्स्ट कि 300 मेंबर्स होने चाहिए कोई भी स्टैंडिंग ऑर्डर को स्टैब्लिश करने के लिए या इशू करने के लिए। सेकंड, 40 डे का प्रायर नोटिस चाहिए आपको, देन ओनली आप लॉकआउट कर सकते हैं या स्ट्राइक कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप रिट्रेंच हो गए हैं तो 15 डे का आपको एक रीस्किलिंग फंड एम्प्लॉय की तरफ से मिलेगा, एंड द 50% नेगोशिएटिव यूनियन का, जैसे हमने बात किया था। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड में इसमें जनरली जितने भी सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स प्रोविजंस लाइक मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होगा, मैटरनिटी क्या होगा, ग्रेच्युटी क्या मिलेगा, अनअवर्स वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी क्या है, दीज एस्पेक्ट्स आर डील्ड। ओके,
ना। इसमें डेफिनेशन की बात करें तो इस सोशल कोड में जो एम्प्लॉयर का डेफिनेशन है उसको और एक्सपैंड किया गया है। जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर है, कैजुअल गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, दिस ऑल आर आल्सो इंक्लूडेड। अर्लियर इट वाज नॉट इंक्लूडेड। ओके, गिग वर्कर को स्पेशली डिफाइन भी किया गया है कि दोज हु आर आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर अरेंजमेंट, they are also recognized for the social security. ओके, अब थ्रेशोल्ड क्या है कि ये जनरली जो स्कीम है वो अप्लाई होनी चाहिए। तो ईपीएफ ऑल द जितने भी प्रोविडेंट फंड हैं, जितने भी स्टैब्लिशमेंट है जिसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, वो उस पे ये मैंडेटरी। एंड दोज हु हैज़ मेंबर लेस देन 20 और 20, उनके लिए ये वॉलंटरी। नाउ let's compare between old and new system. So earlier the EPF was applied only to a certain industry. Okay, like factories, construction, and employer को हमेशा चेक करना पड़ता था कि our industry comes in the notified or not. Below 20 employees was not coverage. Now नए जो है इसमें यूनिवर्सल कवरेज है, वेदर इट इज कोई भी इंडस्ट्री हो, वो लिस्टेड हो नहीं लिस्टेड डजंट मैटर, आपको ये कवरेज देना है। नो नीड टू चेक कोई भी वर्क प्लेस अगर 20 वर्कर से ज़्यादा है तो, अगर वो स्टैब्लिशमेंट के पास 20 लोगों से कम है तो इट इज़ अ वॉलंटरी, वो कर भी सकते हैं और नहीं। नाउ नेक्स्ट, टू कवर ऑल द स्टेमिनस विद 10 अब इसको एक्सपैंड करके 746 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया गया। अर्लियर इट वाज 563, सॉरी 566। ओके, सो हजार्डस इंडस्ट्रीज में अगर एक भी वर्कर है सो ईएसआई मैंडेटरी, और अगर हजार्डस इंडस्ट्रीज में 10 एम्प्लॉय हैं देन इट इज ऑल्सो वो मैंडेटरी। लेकिन अगर हजार इंडस्ट्री में 10 एम्प्लॉय से कम लोग हैं तो इट इज वॉलंटरी फॉर दैट। इस न्यू लॉज नो 740 डिस्ट्रिक्ट में कवर किया गया है। नाउ नेक्स्ट, द वेजेस। वेजेस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि वेजेस में क्या क्या ऐड होंगे। बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, पेमेंट, बोनस, सॉरी बोनस, हाँ, so dearness allowance, basic pay, these are definition of wages. So here is a uniform definition of wages code. Also इंटरस्टेट माइग्रेंट को भी इसमें डिस्कस किया गया कि इंटरस्टेट माइग्रेंट है कौन। सो कोई भी वर्कर जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया है और किस लिए, तो 18,000 से अब तो कम, 18,000 या उससे कम कमाने के लिए, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड termed as interstate migrant. Okay, now they are also covered under the social benefits. Also एक नया सोशल सिक्योरिटी बोर्ड इस बोर्ड में बनाया गया है फॉर अनएम्प्लॉयज वर्कर, गिग वर्कर्स। तो रिकमेंडेड क्या क्या स्कीम्स को मॉनिटर करना है और क्या क्या फंड जो है सोशल सिक्योरिटी अनऑर्गेनाइज्ड सोशल सेक्टर वर्कर्स के लिए, कि कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे उसको यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, द ग्रेचुटी। ग्रेचुटी पहले समझते हैं कि अगर आप किसी ने अपने किसी सर्विस में एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए काम किया और जब पर्टिकुलर पीरियड खत्म होने के बाद जब आप उसको छोड़ते हैं तो एक एक रेम्युनरेशन, एक पेमेंट दिया जाता है, एक लमसम अमाउंट दिया जाता है फॉर द सर्विस। ओके, अर्लियर
लाइक आपने 5 साल काम किया, 5 साल के बाद आपने वो कोई कंपनी थी जिसको छोड़ दिया, तो 5 साल के बाद एक लमसम अमाउंट अपार्ट फ्रॉम द योर वेजेस आपको दिया जाएगा। ओके, सो हियर नाउ, जो it was available earlier only to the fixed term employee without a no service period. अब ये सॉरी, earlier it was limited to fixed term employees, but now it is also covered the contractual level. Also, no minimum service period is required for the fixed term employee. अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉयज हैं तो आपके लिए एक नोट मिनिमम सर्विस पीरियड है, एंड दोज who are contract labor they are also covered in this. Earlier एक 5 साल का कंटिन्यूस सर्विस रिक्वायर्ड था तभी आपको एक ग्रेचुटी मिलेगी, बट नाउ दिस हैज बीन रैप्ड अप। एज आई सेड कि जितने भी एम्प्लॉयर हैं उनको पहले 5 साल कंटिन्यूस सर्विस दिया जाता था, बट इट हैज बीन रैप्ड अप नाउ। आपका एक कोई भी मिनिमम पीरियड नहीं है। Also, the working journalist who can claim the gratuity after just 3 years of, अगर उसने 3 साल कंटिन्यूस सर्विस की है तो उसे ग्रेचुटी मिलेगी। ओके, या सो now let's see the other benefits which is given to, like mother benefit। हम ओल्ड लॉज में इसको और ब्रीफली करेंगे कि और क्या क्या सेम है। द बेनिफिट वाज गिवन इन दैट ओल्ड, इट इज सेम फॉर दिस लॉ ऑल्सो। क्रिज फैसिलिटी दिया जाएगा, वर्किंग लीव्स होगी, कितने वीक की 26 वीक। वी ऑल्सो डिस्कस दिस नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ना कोई भी जॉब वैकेंसी जिस किसी इस्टेब्लिशमेंट की जिसमें 20 से ज़्यादा वर्कर हैं उसको मैंडेटरी है कि उसको ऑनलाइन रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, ना इसको हम लोग एक याद कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि न्यू इंक्लूजन क्या क्या डेफिनेशन का, गिग प्लेटफॉर्म वर्क, अनऑथराइज्ड वर्क, थ्रेशोल्ड कितना है प्रोविडेंट फंड के लिए, तो 20 एम्प्लॉयज है। हजारडस वर्क के लिए कितना थ्रेशोल्ड है, तो 10 एंड 1 फॉर द हजारडस मिनिमम। ग्रेचुटी के लिए पहले फिक्स टर्म था, नाउ देयर इज नो फिक्स टर्म। नाउ सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी में इम्पोर्टेंट प्रोविजन को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या सोशल सिक्योरिटीज दिए जा रहे थे। अगर कोई भी पर्सन जिसकी सैलरी 15,000 पर मंथ से कम है तो उसके लिए ईपीएफए मेंबरशिप is mandatory, and for those who has been earning more than 15,000, it is beyond this, it is optional for them. Now, employment state insurance, जितने भी स्टैब्लिशमेंट जिसके पास 10 से ज़्यादा वर्कर है, नोटिफाइड इंडस्ट्री नॉट रजिस्टर्ड फॉर ईएसआई। एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस के लिए जितने भी स्टैब्लिशमेंट है उसमें 10% से ज़्यादा वर्कर होने चाहिए, प्लस जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो वर्कर को मिलना चाहिए। तो नोटिफिकेशन, ओके, अनऑर्गेनाइज वर्कर को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल सेक्टर में रजिस्ट्रेशन एंड on a national portal via self-declaration will be done for gig platform unorganized worker को भी दिया जाएगा, ताकि एक टारगेट डिलीवरी दिया जा सके इंश्योरेंस बेनिफिट और अदर बेनिफिट्स को।
मैटरनिटी बेनिफिट एज आई सेड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको पॉइंट आउट कर लीजिए कि कि कितने मंथ का लीव पेड मैटरनिटी मिलता है वुमेन्स को। सो इट इज 26 पेड मैटरनिटी लीव मिलता है फॉर 2 चिल्ड्रन। अगर उससे ज़्यादा है तो पीरियड कम हो जाता है। ओके, नाउ ऑल्सो अगर बच्चे के जन्म से पहले कोई भी प्री नाटल केयर नहीं दिया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो उसको एक मेडिकल बोनस भी 3,500 का देना पड़ेगा। कंपनसेशन क्या क्या है इंजरीज होने पर, तो सेम लॉज हैं कि डेथ पे कितना देना पड़ेगा वर्क पे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो ओल्ड में ये चेंजेस क्या क्या होंगे हैं कि जो भी पर्सन अगर इंजर होता है या एक्सीडेंट में डेथ होती है, तो जितने भी रेमुनरेशन जो डिसाइडेड है प्लस 50% पेनल्टी जो एम्प्लॉयर है उसको देना पड़ेगा टू द वर्कर डिपेंडेंट्स, या तो वर्कर को या उसके जो डिपेंडेंट है उनको। ऑल्सो गवर्नमेंट ये नोटिफाई कर सकते हैं कि सेपरेट स्कीम्स गिग वर्कर प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए भी दिया जाना चाहिए। नाउ द मोस्ट एंड द लास्ट वन, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन, क्या क्या सेफ्टी हेल्थ वर्किंग को ध्यान में रख के एस्टेब्लिशमेंट को वर्क करना है। तो इसमें बहुत सारे लॉज जो है सबसे न्यू, जैसे फैक्ट्री एक्ट 1914, माइंस एक्ट 1952, कॉन्ट्रैक्ट लेबर 1977। सो ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है पहले इसको देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री हैज चेंज। नाउ एस्टेब्लिशमेंट जो कि 20 वर्कर से ज़्यादा है और पावर यूज़ कर रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट जो 40 वर्कर हैं लेकिन विदाउट पावर हैं, ये उस पर एप्लीकेबल है। अर्लियर दिस वाज एप्लीकेबल टू 10 वर्कर यूजिंग पावर एंड 20 वर्कर विदाउट पावर। ओके, ये कोड कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी अप्लाई होता है जो कि 50 या 50 से ज़्यादा वर्कर को एम्प्लॉय करते हैं। अर्लियर ये 20 तक ही था, लेकिन अभी से बढ़ाकर 50 कर दिएगा। इफ अ कॉन्ट्रैक्टर हैज मोर देन 50 कॉन्ट्रैक्ट लेबर, देन उसको उन्हें लाइसेंस और वेलफेयर प्रोविजन दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। अब इसको बढ़ाया क्यों गया, क्योंकि पहले 20 था, अब थे, ताकि कॉम्प्लाइंसेस को थोड़ा कम कर दिया जाए। इंटरेस्टेड माइग्रेंट वर्कर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो भी वर्कर 18,000 से कम कर रहे हैं और दूसरे स्टेट में दे आर टर्म्ड एज माइग्रेंट वर्कर, और उनके लिए जो जितने भी सुविधाएं हैं लाइक राशन कार्ड, वन राशन कार्ड, हेल्थ बेनिफिट, दे ऑल आर टू बी गिवन टू देम। ओके, तो इम्पोर्टेंट प्रोविजन क्या क्या है। सबसे पहला ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ में कि कोई भी वर्क कि कोई भी वर्कर डेली वर्किंग 8 घंटे से ज़्यादा नहीं करेगा, यानी वीकली 6 दिन 48 घंटे से ज़्यादा नहीं करेगा। अगर ज़्यादा करता है, ओवर टाइम करता है, तो उसको डबल पेमेंट मिलेगा। सेकंड कि 1 डे पेड लीव उसको मिलेगा फॉर एवरी 20 डे ही वर्क, अगर उसने साल में का 180 दिन काम कर लिया है। अगर उसने साल का 180 दिन काम कर लिया है तो हर 20 दिन पे 1 दिन उसको पेड लीव मिलेगा। सेफ्टी प्रोविजन क्या क्या है, एनुअल हेल्थ चेकअप एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना पड़ेगा, सर्टेन एज के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स देने पड़ेंगे, वेलफेयर फैसिलिटीज लाइक कैंटीन, फर्स्ट एड, ये सब चीज़ एम्प्लॉयर्स को देना पड़ेगा। माइग्रेंट वर्किंग प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या है, तो राशन कार्ड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को वेलफेयर बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। जितने भी जर्नी अलाउंसेस है, अगर उसको जाना है आना है तो उसको अपने स्टेट में वो जाना है वापस आना है, तो उसके लिए अलाउंस देने पड़ेंगे उसे।
वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जैसे आज भी डिस्कस कि वुमेन एम्पावर को नाउ दे आर अलाउड कि वो नाइट में भी वर्क कर सकते हैं फ्रॉम 7 PM रात के टू 6 PM, बट ऑन अ कंडीशन कि वो अपना कंसेंट दे कि वो जॉब के लिए रेडी है, एंड सेफ्टी मेजर्स ऑल आर प्रोवाइडेड टू देम। ओके, वर्किंग जनरल्स के लिए न्यू कवरेज भी लाया गया है, नए नए प्लेटफॉर्म्स लाइक OTT को भी कवर किया गया, ITC को भी कवर किया गया है इसमें। नाउ एक सिंगल लाइसेंस फॉर द कॉन्ट्रैक्टर जो 50 वर्कर से ज़्यादा या स्टैंडिंग फर्म्स के लिए एक सिंगल लाइसेंस दिया जाएगा, जो कि एक इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर ये प्रोवाइड कराएगा लाइसेंस, और ये भी इंश्योर करेगा कि जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ जो इंटरेस्टेड ब्रोकर को मिलनी चाहिए ये उनको मिल रहा है कि पेनल्टीज को बढ़ा दिया गया है ताकि एक डिफरेंस पैदा हो एम्प्लॉयर्स के अंदर। ओके, सो फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव वी हैव टू रिमेंबर दैट 20 to 40 वर्कर फॉर फैक्ट्री डेफिनेशन, ये याद करना है। कॉन्ट्रैक्ट रिवर्स को याद करना है, 8 वर्किंग डे, 1 day फॉर 20 आफ्टर 20 days कि एक दिन का पेड लीव मिलेगा अगर 180 डे का काम कर लिया, एंड माइग्रेंट वर्क। सो दिस वाज द न्यू लॉ। ओल्ड लॉ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।